Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a class SYBCBI. Subject will be Business Planning and Entrepreneurship Management and our topic will be Business Planning. So let's start with the topic. Business plan. What do you mean by business plan? क्या होता है business plan? A business plan is a document that defines in detail a company's objectives and how it plans to achieve its goals. सबसे पहली बात यह है कि हर एक कंपनी के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. So business plan helps to achieve that objectives of the company. जैसे कि for example we can take profit is one of the important objective of each and every company. So business plan helps to achieve that object. Business planning. What do you mean by business planning? Business planning commonly involves collecting the ideas in a formal business plan that outlines a summary of this business, current state as well as the state of the broader market, along with the detailed steps the business will take to improve performances in the coming period. What this means? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर स्टॉक के बारे में, फ्यूचर्स ऑर्डर के बारे में या किसी भी चीज के लिए हमें कंपनी में कुछ डिसीजंस लेने हैं. सो उसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि हमें आज ही प्लान करना पड़ेगा, हमें जो हमारे साथ पास्ट में हमारे पास जो चीजें हुई है, हमारे साथ जितना रिक्वायरमेंट्स था उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमें आज के जमाने में प्लान करना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए किस तरीके से हमें आगे जाना है. So collecting the information, planning of the information, planning how we have to do the performances. So business plans helps in all these things. Planning. What do you mean by planning? See, there are some parts of planning. First is managerial function. Second, goal oriented. क्या होता है प्लानिंग में? सर क्या सोच के हम किसी चीज का प्लानिंग करते हैं? So these are the points. तो first point we'll see, it's a managerial function. What is managerial functions? What are the functions of planning, organizing, directing, controlling? All these are the functions of the managers. How our planning should be? Planning should be a goal oriented. क्या हमारा एम है, क्या हमें हासिल करना है, ये सब हमें प्लानिंग में देखना है. Priority, continuous activity, intellectual process. So all these are the parts of planning. Next है decision making. Decision making सर इसमें क्या होता है कि हमें जिस तरीके से प्लान करना है, हमें प्रॉपरली डिसाइड करना है how we have to do the activities, how it will helps in attaining our objectives, what are the futuristic goals of our planning. आगे चल के हमें इस प्लानिंग से क्या हेल्प मिलेगी, किस तरीके से हमें काम करना है, वो हमें इसमें देखना है. नेक्स्ट सर, प्लानिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वन टाइम, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, चलते आती है. जिस तरीके से हमारे रिक्वायरमेंट्स होगी, जिस तरीके से हमारी सेल्स होगी, उसी तरीके से हमें डे बाय डे कुछ समय में प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा और प्लानिंग करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग. नेक्स्ट इज अवर रीजन व्हाई बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट. ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस प्लान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाट आर द रीजंस बिजनेस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल? हेल्पिंग विद द क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग. कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जिसमें डिसीजंस किस तरीके से लेना. जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने रॉन्ग डिसीजन की वजह से आज वो मार्केट में हमें नहीं दिखाई देते हैं. सो आप सबको उसका नाम पता भी होगा, आप सब जानते होंगे. अगर जानते हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए जरूर. सो हेल्पिंग विद द क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, forcing owners to ask a hard question,
help to avoid mistakes, help to misuse of success, provide a guide to employees. सर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है. सी what we have to do, we have to provide a guidance to the employees, so how they have to do the work, किस तरीके से उन्हें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से उनके जो है ऑपरेशंस में उन्हें ध्यान देना है, किस तरीके से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना है. तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं. ठीक है. सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स योर बिजनेस टू स्टार्ट लाइट, बेटर अंडरस्टैंडिंग विथ योर मार्केट. ये सारी चीजें, दिस इज अ रीजन वाई बिजनेस प्लान इज अ इम्पॉर्टेंट. ओके. सो इन बिजनेस प्लानिंग आप लोगों ने पहले कई समय पढ़ा होगा कि सर बिजनेस प्लानिंग में किस तरीके से होता है, क्या होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं. सर सी, सो देयर आर वेराइटीज. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ओनर होता है. आफ्टर दैट अ पार्टनरशिप फॉर्म, आफ्टर दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ऑलरेडी ये चीजें आपने आपके प्रीवियस जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें शायद पढ़े होंगे. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. सो दीज आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. किस तरीके से ये लोग प्लान करते हैं, क्या करते हैं, हम देखेंगे. इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप. सो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. What are the features of sole proprietorship? First, one man ownership. This means यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर होता है और कोई भी नहीं होता है. जो करता धरता होता है पूरे बिजनेस का, he is only a single owner, a single ownership business. ठीक है. So one man ownership. No separate business entity as compared to the कंपनी. अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, अगर हम बात करते हैं, सो कंपैरेटिवली वहां पे क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी. उनकी अपनी एक पहचान होती है, एक कॉमन सील होता है, उनकी एक अपनी सिग्नेचर होती है. बट यहाँ पे कोई भी जो सोल प्रोप्राइटर है उनकी कोई भी सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं होती है. नो सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे ओनर भी एक ही होता है और मैनेजमेंट भी एक ही होता है. यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है, ही इज ओनली द ओनर एंड ओनर इज ओनली द पर्सन हु इज द कर्ता धर्ता ऑफ हिज बिजनेस. अनलिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द टोटली लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सोल प्रोप्राइटर. ही इज ओनली अ पर्सन who has to take the risk of the liability. The liability of sole trader is unlimited. It's not limited as compared to the joint stock company up to the face value of share. Here, only the whole and sole liability responsible for the liability is sole proprietor. All profit or losses to the proprietor. As you can say, the liability is unlimited, so the profit, if the firm is earning the profit, that profit is wholly depend and wholly goes to the single owner. He is only responsible, he is only the one person who is responsible for a profit also and losses also. Okay. Next, fewer formalities. So as compared to the joint stock company or partnership firm, the legality in this business is little bit low. Yeah, I can say a very much low in sole proprietorship. So as these was the points of the sole proprietorship, next we will look after the features of joint Hindu family business. इसमें क्या होता है सर, एक बिजनेस होता है जो पूरी फैमिली मिलकर करती है, उनको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसमें क्या होता है सर, आपको क्या मेंबरशिप लेनी पड़ती है जैसे जॉइंट स्टॉक में कंपनी में हमें लेनी पड़ती है? नो, इसमें आपको मेंबरशिप आपके बर्थ से ही आपको इसकी मेंबरशिप हो जाती है. यू आर अ मेंबर ऑफ योर अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट, इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो फैमिली का जो हेड है ज्यादा करके वो इस मैनेजमेंट पे ध्यान देता है. लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अनलिमिटेड टुवर्ड्स द फैमिली. नो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो कोरम है, देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम. माइनर मेंबर्स को भी बेनिफिट दिया जाता है और अनअफेक्टेड बाय डेथ. अगर उसमें से किसी जो हेड है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सारी जिम्मेदारी उनको पास ऑन हो जाती है. आगे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. यहाँ पे क्या होता है सर, 2 or more पार्टनर्स
एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ आते हैं, कम टुगेदर अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, एक लॉफुल बिजनेस डिसाइड करते हैं कि हमें लॉफुल बिजनेस करना है, जिसमें दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे डू एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपका जो कैपिटल है वो भी उनका रेशियोज होता है, जो प्री डिसाइडेड रेशियोज उसमें ये शेयर करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लॉफुल बिजनेस, कोई भी 2 जने मिलकर अगर कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। इसमें भी लायबिलिटी जो है वो पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है एज पर द रेशियोज। दियर शेयर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे ज्वाइंट ओनरशिप होती है, और मैनेजमेंट भी दोनों पार्टनर्स को मिलके संभालना पड़ता है, जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमें पार्टनरशिप फॉर्म को ध्यान देना पड़ता है। तो आपने जैसे कि आज देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फॉर्म। सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आगे अगले टॉपिक्स के पास। थैंक यू वेरी मच।